آپ سب کو یہ ادراک ہے, شعور ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ کے ملک میں آج کیا ہو رہا ہے, کہ آپ کے ملک میں آج جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے, کہ آپ کے ملک میں آج جو ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے. جانتے ہو نا یہ سب؟ دیکھو ریاست کے کئی ستون ہوتے ہیں. ایگزیکٹو ہوتا ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, جوڈیشری ہوتی ہے. سب سے پہلے ذرا حکومت ایگزیکٹو کی بات کر لیتے ہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ جب نواز شریف کی حکومت نواز شریف سے چھینی گئی اور ایک اقامہ پر نواز شریف کو باہر کر دیا گیا, آپ کے نمائندے نواز شریف کو آفس سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا ایک ایکسپائرڈ اقامہ کے اوپر, اس کے بعد 2018 کا الیکشن چوری کر یہ جو نالائق اور نااہل اور سلیکٹڈ حکومت ہمارے سروں پر مسلط کر دی گئی ہے, تو آج بتاؤ ایک پیج پر ہونے کے باوجود اس بس کو جو روز جلتی بھی ہے اور دھکا بھی لگانا پڑتا ہے, اس بس کو جس کا ڈرائیور یہ سلیکٹڈ ہے, یہ بس چل نہیں رہی. پاکستان, مجھے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ, پاکستان چل رہا ہے آج؟ پاکستان چل رہا ہے آج؟ حکومت چل رہی ہے آج؟ روز صبح جب آپ اٹھتے ہو تو سب سے پہلی خبر کیا ملتی ہے کہ پاکستان کے اندر مہنگائی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے. ابھی جو میاں صاحب نے بات کی تو مجھے یہاں سے اندازہ ہوا, ایک آواز آئی کہ پہلے 100 روپے میں, ادھر سے مجھے کہیں آواز آئی تھی کہ پہلے 100 روپے میں ہانڈی روٹی ہو جاتی تھی. اب ہوتی ہے؟ اب 1000 روپے میں بھی ہوتی ہے؟ بھائی جب روٹی 30 روپے کی ہو گئی ہو تو ایک گھر میں جس میں 8-10 کھانے والے ہیں وہ اپنے خرچے کہاں سے پورے کریں گے؟ اور گیس کا حال دیکھ لو, گیس آ نہیں رہی لیکن بل آ رہے ہیں بہت بڑے بڑے. ایک خاندان جس کا 25,000 روپیہ مہینے کی آمدن ہے, اس کو 50,000 روپے کا بل آ رہا ہے بجلی اور گیس کا. اور پھر ایک منٹ, وہ پتہ ہے نا کون کہتا تھا کہ سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا؟ کون کہتا تھا؟ آج سبز پاسپورٹ کی عزت تو کیا ہونی تھی, پوری دنیا کے ملکوں نے پاکستان کی فلائٹس ہی بین کر دی ہیں, اور ملکوں نے, کوئی یہ کہتا تھا نا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا ہے, تو کہاں ہے آج وہ وزیر اعظم جو سائیکل پہ جاتا تھا؟ آج وہ جعلی وزیر اعظم جب کسی شہر میں آتا ہے تو عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھ کر ان کا پورا شہر کا شہر ہی سیل کر دیا جاتا ہے. بھائی تمہیں کیا خطرہ ہے؟ خطرہ تو نواز شریف جیسے حکمران کو تھا جس نے جب اقتدار سنبھالا تو ہر روز ملک میں دھماکے ہوتے تھے اور ہر روز ملک پہ ڈرون اٹیکس ہوتے تھے. اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے 2 جنگیں لڑی. کون سی جنگیں؟ ضرب عضب اور رد الفساد. اور پھر بھی وہ جنگیں بھی لڑ رہا تھا, پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کر رہا تھا اور عوام کے درمیان موجود بھی ہوتا تھا. آج اس جعلی اور ڈرپوک وزیر اعظم کو کہو ذرا عوام کے درمیان 2 منٹ نکل کر تو دکھائے. اور ملتان کی میری تقریر سنی تھی نا, مجھے بہت لوگوں نے کہا کہ وہ جو تقریر تھی نا, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے.
آپ کو پتا ہے کہ ایل این جی اس نے باہر سے منگوانی تھی. وہ اس لیے دیر سے منگوائی کیونکہ اس کے ان دوستوں کا جو اس کے گھروں کے اور کچن کے اور پارٹی کے خرچے چلاتے ہیں, کیونکہ ان کے فرنس آئل پلانٹس ہیں, اور فرنس آئل پلانٹ سے جب یہ بنتی ہے تو عوام کو مہنگی ملتی ہے. جانتے ہو کہ 122 ارب کا نقصان ہوا آپ کا, اور یہ 122 ارب کا نقصان جو ہے یہ کس کا ہوا؟ آپ جو اپنی خون پسینے اور محنت کی کمائی سے جو ٹیکس دیتے ہو وہ ان کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. بجائے اس کے کہ عوام کو سستی بجلی ملتی, اس کے کچن کا خرچہ چلانے والے دوستوں کو فائدہ ہوا, لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اور وہ اعلیٰ عدلیہ کی بات سنی تھی نا, سپریم کورٹ نے کہا کہ بلین ٹری سونامی کے درخت کہاں لگے, ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہے, لگتا ہے سارے درخت بنی گالا میں لگ گئے ہیں. لیکن بندہ بہت ایماندار ہے. اب مجھے یہ بھی پتا چلا ہے, کل مجھے میری دادی کا افسوس کرنے ایک بزنس مین آئے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری بزنس جو ان کی انڈسٹری ہے اس کے لیے ایل این جی کی ضرورت پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا جب نواز شریف کی حکومت تھی تو ایک کے بعد ایک جہاز ایل این جی لے کر سمندر کے کنارے کھڑا ہوتا تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ آج ایل این جی کے انتظار میں ساری انڈسٹریز بیٹھی ہوئی ہیں کہ ہمیں ایل این جی ملے. اور پھر آ جاؤ ذرا ہسپتالوں کی طرف. آج صبح جب میں نے پڑھا, کون یہ کہتا تھا کہ موٹر وے بنانے سے قومیں نہیں بنتی, ہسپتال اور سکول بنانے چاہیے, تو مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا بتانا کہ پورے پاکستان میں, ایک صوبہ چھوڑ ہی دو, پورے پاکستان میں کیا اس جعلی حکومت نے ایک بھی ہسپتال بنایا؟ اور آپ کو پتا ہے میں صبح پڑھ رہی تھی کہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل جو کہ کے پی کے میں ہے, وہاں پر آج آکسیجن کے سلنڈرز وقت پر نہ پہنچنے کی وجہ سے 7 کورونا میں مبتلا افراد جاں بحق ہو گئے. ہے کوئی اس کو پوچھنے والا؟ کوئی اس کو آئینہ دکھانے والا ہے کہ تمہارے اتنے بڑے بڑے دعوے آج کہاں گئے؟ ہسپتالوں میں لکھ کر لگا دیا گیا ہے کہ اگر اسٹریچر چاہیے یا ویل چیئر چاہیے غریب مریض کو, اس کو 20 روپے دینے پڑیں گے, 20 روپے. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو لاہور کا شہباز شریف نے چلڈرن ہاسپٹل بنایا تھا, اس میں 100 بچے صرف فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے. 100 بچے, کیونکہ جو پنجاب حکومت اس کو شہباز شریف کے وقت میں گرانٹ دیتی تھی, وہ ظالم حکومت میں وہ گرانٹ ختم کر دی گئی. اور سوچو ان ماؤں کا حال, سوچو میں بھی ماں ہوں, میرے بھی بچے ہیں, سوچو کہ کسی ماں کے بچے کا اس لیے انتقال ہو جائے کیونکہ ہسپتال کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ جو حکومت ہے کہتا تھا میں 9 دن میں 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, اور یہ جو کرپشن ختم کرنے کے دعوے ہیں نا, ابھی دیکھنا میں عاصم سلیم باجوہ کا نام دوں گی تو میڈیا مجھے میوٹ کر دے گا. آپ جانتے ہو کل قاضی فائز عیسیٰ کو جانتے ہو نا, کل قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی پٹیشن میں یہ کہا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ کی اہلیہ کی 13 کمرشل اور 5 رہائشی پراپرٹیز امریکہ جیسے ملک میں انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی.
भाई जरा है किसी कोर्ट में इतनी हिम्मत नवाज शरीफ जैसे 3 दफा के वजीर आजम को, जो अपनी बेटी समेत 200 पेशियों में उसने भुगता इस इंतकाम को, अपने बाप से लेकर अपने पोते तक का 3 नस्लों का हिसाब दिया। है किसी में इतनी हिम्मत कि आसिम सलीम बाजवा को बुलाकर पूछे कि भाई तुम लाख रुपया तनख्वाह लेने वाले, वो भी कौम के पैसों से, तुम्हारे पास इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कहां से आई? और एक बात, अभी आप सब नारा लगा रहे थे ना, आसिम बाजवा रसीदें दो, तो कोई कोर्ट उससे रसीदें मांगे ना मांगे, किसी अदालत में इतना हौसला हो ना हो कि उससे रसीदें मांगे या ना मांगे। वो नैब का चेयरमैन कहता था ना कि मैं फेस नहीं केस देखता हूं, तो अब उसको आसिम सलीम बाजवा का फेस नजर नहीं आ रहा? नैब उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, एफआईए उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, कोई जाली हुकूमत उससे रसीदें मांगे या ना मांगे, पाकिस्तान की आवाम आसिम सलीम बाजवा से रसीदें जरूर मांगेगी। जरा नारा लगाओ ना, आसिम बाजवा रसीदें दो। आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा, आसिम बाजवा। अभी मुझे ये अता तारड़ मेरा छोटा भाई है, जांबाज है मुस्लिम लीग नून का, ये मुझे कह रहा है कि इन्होंने आपकी आवाज मीडिया पे म्यूट कर दी है। देखो मैं आज आपके थ्रू, एक मिनट, हाँ ठीक है, आज मैं आपके थ्रू मीडिया को भी पैगाम देना चाहती हूं, ये हुकूमत बहुत चालाक है, इसने एक मीडिया हाउस को दूसरे मीडिया हाउस से लड़ा दिया है, एक एंकर को दूसरे एंकर से लड़ा दिया है, और आज मीडिया इतना भी आजाद नहीं है कि एक रिटायर्ड अफसर का नाम टीवी पर चला सके। और जो चैनल्स दबाव का सामना करने से इनकार करते हैं, या जो चैनल्स अपनी सहाफती जिम्मेदारियां अदा करते हैं, उनके सरबराहों को नैब की डिटेंशन सेल्स में फेंक दिया जाता है। आपको पता है ना कि जो जियो के सरबराह हैं, आजकल जियो बहुत हमारे खिलाफ है, मगर मुझे सब समझ आती है कि प्रेशर ऊपर से है, और सब चैनल्स आजकल जो सबक पढ़ाया जाता है, जो कागज पे लिखा हुआ आ जाता है, जो फोन आ जाता है कहीं से एक छोटे से अफसर का भी, उनको मानना पड़ता है। मुझे पता है वो मजबूर हैं, लेकिन क्या सदा इस तरह ही मजबूरी में बैठे रहोगे? पाकिस्तान के जितने भी ऑनरेबल एंकर्स थे, जो सच और हक को बोलने की ताकत रखते थे, उनको उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। उनके चैनल्स को ये कहा गया कि अपने फला एंकर को जो बहुत बोलता है उसको बाहर निकाल दो, वरना हम आपका चैनल बंद कर देंगे। और चैनल्स बंद भी हुए। वो सब आज छोटे से लेके बड़े सहाफी आज कैदों में हैं, अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे। और इसी तरह दिन दिहाड़े मतीउल्लाह जान गायब हो जाता है, अली इमरान गायब हो जाता है, और ये सब घरों से उठा लिए जाते हैं। और जाली वजीर आजम टीवी पर आकर कहता है, मुझे तो नहीं पता किसने उठा लिया। भाई, अगर तुम्हें यह पता नहीं है कि कराची पे मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी के कमरे पर किसने हमला किया था, और कौन उसका दरवाजा तोड़कर उसके कमरे तक आ गया था, किसने कैप्टन सफदर को अगवा किया, किसने आईजी सिंध को अगवा किया, किसने इन सहाफियों को उठाया, तो फिर तुम्हारा नाम मिस्टर खामखा क्यों ना रख दे पाकिस्तान की आवाम। तो मैं आज
पाकिस्तान के मीडिया को भी ये पैगाम देना चाहती हूं कि अच्छा कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जिन्होंने म्यूट नहीं किया, और सब मिलकर उन चैनल्स को सलाम करें। साथ साथ खबरें आ रही है, हमारा मीडिया सेल भी बहुत तेज है माशाल्लाह। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि आज हम उस मीडिया से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कब तक हाथ जोड़कर मार खाते रहोगे? कब तक ये बर्दाश्त करोगे कि हक और सच बात कहने के लिए तुम्हारे घरों से दिन दिहाड़े, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट में, तुम्हें सड़क पे घसीटते हुए उठाकर डालों में डालें और तुम्हें ऐसी जगह ले जाएं कि वापसी पे तुम्हें यह कहना पड़े 2 दिन के बाद कि भाई मैं तो शुमाली इलाका जात की सैर के लिए गया था। तो मीडिया भी किसी का आलाए कार बनने से इनकार कर दे तो मैं देखती हूं किसकी हिम्मत है कि इतने सारे चैनल्स को इकट्ठा, अगर ये इकट्ठे हो जाएं जुल्म के खिलाफ, तो मैं देखूंगी किसमें इतनी हिम्मत है कि मीडिया के अंदर भी दरार ला सके। इसी तरह मैं पाकिस्तान की जुडिशरी की भी बात करना चाहती हूं। अभी आपको पता चला ना कि अरशद मलिक साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, वो भी अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। भाई आपको याद है जब मैंने अरशद मलिक की वो वीडियो चलाई थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, आपको पता है कि मैंने कितने खुफिया रखकर, मियां साहब तब कोट लखपत जेल में थे, तो मैंने चुपके खुफिया तौर पे वो अनाउंस नहीं किया। सब पूछते रहे कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए रखी है, तो मैंने कहा कि कोई मामला है, तो वीडियो चला दी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मुझे ब्लैकमेल करके नवाज शरीफ को झूठी सजा दिलवाई गई। और मैं आज, आप जानते हो ना, कल काजी फाइज ईसा साहब ने पिटिशन दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ रेफरेंस बदनीयती पर मुश्तमिल था और जो पिछले चीफ जस्टिस थे जस्टिस आसिफ सईद खोसा, वो मुझे लॉन में टहलने के लिए ले गए और उन्होंने मुझे एक स्ट्रैटेजी के तहत ये कहा कि आपके खिलाफ तो रेफरेंस आने वाला है, इसका मतलब ये है कि आपके खिलाफ रेफरेंस आने वाला है, आप रिटायर हो जाए और इस्तीफा दें और घर जाएं। जिस तरह नवाज शरीफ को ये डराते थे, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था तो उसको कहते थे ये कर दो वरना पनामा में हम कुछ कर देंगे, और फिर जब पनामा आ गया तो कहा चुप करके इस्तीफा देके घर चले जाओ वरना ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। शाबाश है नवाज शरीफ को कि उसने जुल्म अपने ऊपर सह लिया। जानते हो ना कि पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ का नाम नहीं था, जानते हो ना? नवाज शरीफ को शाबाश है कि वो ये जानता था कि अगर मैंने इस वक्त इनकी बात से इनकार किया तो पीछे पीछे क्या आ रहा है। वो 3 दफा का वजीर आजम था, उसने कहा कुछ भी कर लो, पाकिस्तान के अवाम ने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है, पाकिस्तान के अवाम के अलावा मैं ये हक किसी को नहीं दूंगा कि इस कुर्सी से मुझे उठाए। तो मैं जजेस को, मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदलिया को भी ये कहना चाहती हूं कि अगर आप इन अहकामात को मानते हैं तो पिछले जो 2 चीफ जस्टिसेस का हाल हुआ है, जब वो कुर्सी पर बैठे होते हैं तो सब एहतरामन या उनके खौफ के मारे उनको सलाम करते हैं, जब वो कुर्सी छोड़कर जाते हैं तो कोई उनसे हाथ मिलाने का भी रवादार नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आप अपने 2 साल, अपने 3 साल निकाल जाएं तो आप कहें कि मैं बहुत कामयाब हूं। कामयाब वो इंसान है कि उसके जाने के बाद उसको लोग याद करें और कहें कि बंदा बिल्कुल ठीक था, बंदा बहादुर था। जैसे आज उनका क्या नाम है जो फौत हुए जस्टिस पेशावर वाले, वो जो सेठ वकार साहब है, आप देख ले, फर्क देख ले लोगों में। सेठ वकार साहब पेशावर के कोर्ट के चीफ जस्टिस,
जिन्होंने मुशर्रफ को सजा दी थी फांसी की, आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जब भी तारीख उनको याद करेगी उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और जरा ये भी सोच लो कि ये चीफ जस्टिस जो अभी घर गए, इनको अवाम किस नाम से याद करेगी। तो मैं जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, मैं जजेस से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि उनको प्रेशराइज करने वालों के चेहरे अवाम को नजर नहीं आते। वो बहुत चालाक लोग हैं, वो पर्दे के पीछे छुपे होते हैं ताकि उनके चेहरे अवाम को नजर ना आए। अवाम को जजेस के चेहरे नजर आते हैं और वो जजेस के किरदारों को, जजेस की जो नौकरियां, उसको हमेशा के लिए दागदार कर देते हैं। तो अगर जजेस भी इनकार कर दें कि चाहे वो काजी फाइज ईसा का केस हो या जस्टिस शौकत अजीज सदीकी का, जिसने कहा था कि मुझे आकर कहते थे कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बेल मत देना, हमारी 2 साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अब वो बेचारा कब से इंतजार में है कि उसको इंसाफ मिले, अब सुना है कि उनकी पिटिशन भी लग रही है। तो दुआ करो कि हमारे जो आईन और कानून पर चलने वाले जजेस हैं, अल्लाह ताला उनको सुरखरू करे। इनमें से किसी जज को मैं नहीं जानती, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि पाकिस्तान में इंसाफ और कानून का बोल बाला हो। पाकिस्तान में इंतकाम पर नहीं, इंसाफ पर फैसले हों। और कोई जज जिसकी फाइल इनके पास होती है या कोई भी चीज इनके पास होती है, वो इनके इंतकाम का निशाना न बने। और फिर अभी मैं अपने MNAs और MPAs से मिलकर आई हूं, कुछ दिन हुए, तो एक MPA ने जो टिकट होल्डर था, वो महकमा ज़राअत वाली बात याद है ना, कि एक बेचारे को मुस्लिम लीग नून की टिकट मिली, वो अपने इलाके का बहुत ही मशहूर आदमी था और उसकी जीत पक्की थी। उसको ये कहा गया कि तुम मुस्लिम लीग नून का टिकट वापस कर दो 2018 में। उसने कहा मैं तो नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं? तो उसने कहा तुम आजाद हैसियत में खड़े हो जाओ। उसने कहा भाई मेरी जमात मुस्लिम लीग नून है, मैं बेवफा आदमी नहीं हूं, तो मैं क्यों टिकट वापस कर दूं और आजाद खड़े हो जाऊं? तो उसके मुंह पे इन लोगों ने थप्पड़ मारे। अब मुझे ये बताओ, मैं सारे पाकिस्तान के MNAs और MPAs से मुखातिब हूं, मुझे बताओ कि आपकी ये अब आपका फ्यूचर है कि अगर आप अपनी वफादारियां बेचने से इनकार करोगे तो आपके मुंह पे थप्पड़ मारे जाएंगे? कब तक ये जुल्म आप बर्दाश्त करोगे? आप अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हो, अपनी इज्जत का पास आपको होना चाहिए। तो मैंने अपने लोगों को कहा, मैंने अपने MNAs और MPAs को कहा, मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि FIR कट जाएगी, घर से उठा के ले जाएंगे, तो कहो उठा के लेके जाना है तो ले जाओ, गिरफ्तार करना है तो कर लो, ना हम घर बैठेंगे ना अपनी वफादारियां छोड़ेंगे। और एक बात मैं आखिर में यह भी कहती जाऊं कि मुंतखब हुकूमतें सही काम भी करें तो वो गलत, उनकी किरदार कुशी होती है। आज पाकिस्तान में कोई भी मंसूबा उठाकर देख लो खिदमत का, चाहे वो सड़क हो या वो अस्पताल हो या वो यूनिवर्सिटी हो या वो बिजली का कारखाना हो या कुछ भी हो, उस पर आपको एक ही मोहर नजर आएगी और वो है मोहम्मद नवाज शरीफ, और वो है मोहम्मद शहबाज शरीफ, और वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। लेकिन आज 5.8 ग्रोथ थी और आज अगर 0 से नीचे जेरे जमीन ग्रोथ चली गई है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। और फिर बंदा ताबेदार है, ठीक है। और उसके बाद आजकल ईमानदार उसको कहा जाता है जो चोर भी हो, डाकू भी हो, लेकिन ताबेदार हो। नहीं, ताबेदार भी है। हाँ, वो कहता है कि मेरे अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बंदा ताबेदार है।
भाई 1 करोड़ नौकरियों का वादा करने वाले आज बाहर से भी बेचारे जिनकी नौकरियां थी वो वीजे की पॉलिसी खत्म होने की वजह से वो सब भी पाकिस्तान में नौकरियां खो के वापस आ रहे हैं। लाखों बंदा बेरोजगार हो गया, लाखों खानदान बेरोजगार हो गए, लेकिन किसी को कोई इसलिए तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। दवाई की कीमत 600 गुना बढ़ गई। बीमार गरीब दवाई के बगैर मर रहा है, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं, मीडिया पर भी कोई शोर नहीं। और फिर कारोबार बंद, रोजगार बंद, दुकानें बंद, रेहड़ी वालों का रोजगार बंद, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं क्योंकि बंदा ताबेदार है। और तरक्की का पहिया जो नवाज शरीफ की हुकूमत में तेजी से घूम रहा था, वो तरक्की का पहिया आज उल्टी तरफ घूम रहा है। और देखो, यूरोप के मुल्कों ने पाकिस्तान के जहाज और पाकिस्तान के पायलट्स और पाकिस्तान की फ्लाइट्स बंद कर दी, लेकिन किसी के कान पे जूं इसलिए नहीं रींग रही क्योंकि बंदा ताबेदार है। और कश्मीर का सौदा हो गया मेरे भाइयों, कश्मीर का सौदा हो गया। कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरा और ये कहता है कि मोदी मेरा फोन नहीं उठाता। कश्मीर का सौदा हो गया, कश्मीरियों पर गद्दारी के पर्चे कट गए, लेकिन अब किसी को तकलीफ नहीं होती क्योंकि बंदा ताबेदार है। आटा चीनी चोरी हो गई, गंदम चोरी हो गई, जेबों अवाम का पैसा इस जाली आदमी के जेबों में चला गया, लेकिन अब कोई ना FIA, ना नैब, ना JIT, ना ही कोई अदालत, क्योंकि बंदा ताबेदार है। अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का नाम आज से ताबेदार खान साहब रख देना चाहिए। बंदा ईमानदार भी है और बंदा ताबेदार भी है। और दूसरा कोई बंदा चाहे लाख ईमानदार हो, उसने लाख पाकिस्तान की खिदमत की हो, लेकिन अगर वो ताबेदार नहीं है तो वो फारिग है, वो फारिग है। और एक तरफ दुनिया का सबसे नालायक, दुनिया का सबसे नाअहल बंदा हो और गरीब के चूल्हे बुझ गए हो और पाकिस्तान बंद हो गया हो, पाकिस्तान का कारोबार बंद हो गया हो, मईशत बंद हो गई हो, हर चीज को ताला लग गया हो, लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि बंदा ताबेदार है। तो आज मेरे साथ वादा करें मिलकर कि नवाज शरीफ ने जुल्म सहकर और अपने खानदान पर जुल्म सहकर इस 72 साल की उम्र में अगर आपकी सरबुलंदी का अलम उठाया है तो आखिर तक नवाज शरीफ का साथ दोगे इंशाल्लाह। ये हुकूमत घर जाएगी तो पाकिस्तान चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो महंगाई खत्म होगी, ये हुकूमत घर जाएगी तो कारोबार चलेगा, ये हुकूमत घर जाएगी तो आटा चीनी गंदम और सब्जियां सस्ती होंगी।